One more picture. Yes. See now? Beautiful. इधर देखिए, इधर देखिए. Change your back. Center sir. इधर सर. बस यहाँ पे. Turn, change. Center was next. One last picture. पता? One more. वाह क्या बात है. One more. सर आपको कितना तो हाँ very good. One more. Five. Yeah. Change the pose. I think pretty much justifies everything. पूरा justify करता है क्योंकि love और kill दोनों में साथ हुआ. You can see the first half of the film. प्यार हो रहा है, you know, they loving each other. और इतने प्यार भी. And then second half वो reveal नहीं करेंगे, but obviously आपने देखा होगा. So it's like putting both of the intense parts of the world together. So you got to love and you also got to hate. Yeah. I think everyone so far is shocking. You know, like जब फिल्म निकलता है तो डर सा लगता है ना. It's like you feel scared. क्या होगा क्या नहीं होगा. Audience का response क्या होगा. But everyone's coming off and saying you did a fantastic job. The crew did a fantastic job. I mean, आप लोगों को कैसा लगा? You enjoyed it? Yeah. The movie starts with love, Yeah. and then how it turns out in the end, very different. It shows the reality kind of. Yeah. So how this film is very much connected with the society or like something. I think pretty much there's that sort of there's domestic issues and it's happening in every household. No matter what you do, it's happening in every household. And how I think there should be a balanced ego in a relationship as well at the same time. And it's to the extreme. Sometimes this sort of domestic, when you see these issues happening in real life. I mean, this is what we try to portray. कि ये हो रहा है. That sometimes women get suppressed, men they don't know what they're thinking. Sometimes the intention might be correct, but then it turns out to be totally over. The same question to ask you, Matt. मैं इस तरह की स्टोरी में काम करना कितना अच्छा फील होता है और ये कितना जस्टिफाई करता है सब्जेक्ट आज की सिचुएशन. To be very honest, as Sana, I never took this as a household, affair or cheating or something. It was love. It was purely love. And sometimes when ego or misunderstanding happen, then these things cause. And for me, it was a process. It was a beautiful process. Turning into something else. It was an eclipse happening. There was an eclipse happening. And it was a beautiful process for me rather than understanding it like atyachar or female abuse or household. I don't believe it happens though, but this is not in relation. For me, it is not that. This is part of love. When two people are not able to understand each other, they go to an extent that they can do anything, and even in that thought, they can hurt each other and beat each other. But that's part of it. So as an actor, what you have learned in the cinema in this film? What was your whole experience when working with the actor as well as the director and the whole team? It was a beautiful process for me, to be very honest. I tried to do something. I tried to go in a process and evolve myself as Sana. I don't know how much am I able to do that, justify it or not. But I tried that. और मैं अभी भी उसी process में. I'm still in the process of searching that because sometimes I am not able to believe. Before Sana, I was not able to believe in love so much that a girl could kill herself. Yeah, that's a psyche actually. It's still happening. It's still happening in the modern era. It still happens. I mean, stuff like that is just because पुराने ज़माने में हमने
we saw it back in 20 years ago. Yeah, मतलब होता था, and he was right, it was correct. But now in the modern era, it's still happening. In the modern world, it's still happening. There's still men that are controlling out there. But when the audience will see this film, Yeah. when they will see it, Oh, basically, this is going to go for a film festival run. So we're looking to sort of like, for trying to get it around Europe. We're trying to get it around India, and then hopefully by next year, mid next year, we're looking to release it. Make it release. One more. Yeah. सर आपने ये जो फिल्म हीट किल आई लव हर तो आपकी फिल्म लोग पसंद कर रहे हैं आपकी क्या आप कभी प्रोजेक्ट से आपके इसके अलावा कुछ बात कर सकेंगे? Yes, of course. So इस साल hopefully Cardiff Film Festival में हमारा there's another film coming out called दोनों मायना जाने क्यों 3. The first one had 11 international awards, so I'm very happy to be part of the third installment. And एक और film भी आ रही है, Lights Camera Murder, which is going to be released this year as well. So these are the two feature films which I'm looking forward to. इससे पहले I produced another film called Diaplan, वो भी festival run पे गया. And it did really well in the Cannes Film Festival, in the London Film Festival, Cardiff Film Festival, India as well. So it's been around. So this one is predominantly for the festival at the moment. As in like what you are learning with all this social based movies, like what are you learning? What are you like finding in yourself? I mean, it's wonderful discovery, when especially with social issues, there's a message that you can put across, I don't like to do typical films. I like a controversial topic, and when I see a controversial topic, it touches, it touches a very sensitive issue. So I'm always looking for controversial topics, different kind of storylines, and this one actually, when I decided I want to produce it and actually act in it, I was hesitant at first because of the whole situation. As you saw the film, how it unfolds. But again, in the end, I mean, it's different. It's not the hero anti-hero type. It's in between. So sometimes an actor needs to know exactly where he belongs as an actor. एक्चुअली क्या है ना, हम अपनी लाइफ में ना बहुत चीज़ों को नोटिस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं एंड कुछ सीखने की कोशिश करते हैं. एज अ राइटर मैं अगर इसे देख रहा हूँ तो आई लाइक टू ऑब्जर्व समथिंग फ्रॉम हिम. एंड वैसे ही लुकिंग एट मैरिड लाइफ, इंडियन मैरिड लाइफ, जो कुछ चीज़ें रहती है जो बाहर नहीं आती है लेकिन होती है हमारे, है कि वो छोटे शहरों में स्पेशली कि लोग उतना ऊपर तरीके से बोल नहीं पाते हैं एंड वहाँ पर सेक्रीफाइसिंग समथिंग फॉर योर लव. सो दिस वॉज माई बेसिक पॉइंट कि जहाँ पर मैं थोड़ा डोमेस्टिक वायलेंस भी दिखा सकूँ, प्यार भी दिखा सकूँ एंड सेक्रीफाइस. इट्स द स्टोरी ऑल अबाउट द सेक्रीफाइस फॉर योर लव. एंड everyone, my family and everyone supported me and कहीं ना कहीं मुझे आइडियाज़ कहीं ना कहीं मेरे फ्रेंड्स एंड उन सब से ही मिले हैं. फिल्म्स देखते बड़े हुए हैं, वहाँ से ही आइडियाज़ आते हैं. आई राइट इट डाउन. ये आइडिया कहाँ से है जिस पर रोशन डाल सके आप? This idea actually came, I was reading a blog जहाँ पर this girl actually committed suicide in real life because of domestic violence and marital rape. एंड उसके पॉइंट को मुझे लगा कि अब ये केस को थोड़ा बढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा लोगों को इस बारे में, लेकिन कुछ दिनों बाद आई डिडंट फाइंड इट. तो फिर मुझे समझ में आया कि इट वॉज छोटे शहर का एक न्यूज़पेपर का एक ब्लॉग जो शायद उतना बड़ा लेवल पे नहीं बताया गया. तो वहाँ से क्लिक मी कि कैन आई मेक अ फिल्म ऑन दिस एंड कैन आई शो पीपल की जब आप किसी को हिट करते हो, जब बोला गया है हमारे रामचरितमानस में पति परमेश्वर एंड एवरीथिंग, बट द मोमेंट यू हिट योर वाइफ, आप पति नहीं हो. परमेश्वर तो बहुत दूर की बात है, आप पति भी नहीं हो, आप इंसान भी नहीं हो मेरे हिसाब से. तो सो दिस इज़ हाउ दैट इंस्पायर्ड मी. मेरी इसके पहले की भी फिल्म, इट्स ऑल ऑन सोशल इशूज़, बिकॉज आई थिंक इफ आई कैन इम्प्रूव इवन वन पर्सन फ्रॉम करोर्स ऑफ पीपल जो मेरी फिल्म देख के शायद रियलाइज़ करे कि हाँ मैं गलत कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, तो दैट इज़ ऑल, दैट विल बी एन अचीवमेंट फॉर लाइफ, नथिंग एल्स. इस फिल्म को किस तरह से आप आगे लेकर जाना चाहते हैं? फेस्टिवल्स ये फिल्म विल बी स्क्रीन्ड ऑन कांस आफ्टर दिस एंड इट हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर कांस की स्पेशल स्क्रीनिंग में. एंड इसके अलावा वी आर सेंडिंग इट टू फिल्म फेस्टिवल्स एंड और भी कहीं जगह पे स्पेशल स्क्रीनिंग हो रही है, बट अभी उसके बारे में आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज इट बिकॉज दैट्स अ लिटिल सरप्राइज फॉर माय ऑडियंस एंड एवरीवन.
but we'll talk about it soon, I guess. Right. सर किस तरह से ये फिल्म से जुड़े थे आप, जिस तरह से आपको ये एक्सपीरियंस मिला और क्या नया कुछ सीखा, जी मैं आयुष के साथ पिछले 2 साल से काम कर रहा हूँ। मेरी फर्स्ट फिल्म आयुष के साथ ही थी एंड अभी रिसेंटली हमने साथ में ही अपना प्रोडक्शन हाउस चालू किया है, वो रीइन्वेंट के साथ जो हम लोग अनफिल्टर्ड फिल्म्स कर रहे हैं, तो अनफिल्टर्ड फिल्म हमारे साथ में ही है। तो उसमें एज एन एक्टर फाइनली अपना खुद के प्रोडक्शन में काम करना एंड दैट टू ऑन सच अ इम्पॉर्टेंट सोशल इशू वाज समथिंग दैट एवरी एक्टर वांट्स, कि he gets that opportunity to connect to people, to connect to the audience in real life, कि आप ऐसी चीज़ें पिकअप कर रहे हैं जो शायद आपकी लाइफ में हो रही होगी या किसी और की लाइफ में हो रही होगी या मेरे बगल में घर में हो रही होगी, बट मुझे नहीं पता है क्योंकि वो बाहर नहीं आती है, वो घर के अंदर बंद रह जाती है। तो एक एक्टर का काम यही होता है कि ऐसी चीज़ें आप ऑडियंस के सामने लाओ जो जनरली नहीं होती है, क्योंकि एक्टर एक ऐसा मीडियम है जो हर किसी को देखने को मिलता है। एक्टर पोर्ट्रे कर सकता है किसी भी चीज़ को एंड दैट्स व्हाट एन एक्टर नीड्स टू गेट इनटू द कैरेक्टर ऑफ द। हाँ, हम लोग की एक्चुअली एक और शॉर्ट फिल्म है, वो भी एक और कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे है, उसकी भी अभी एडिटिंग चल रही है। तो वी आर ऑल्सो प्लानिंग टू सेंड इट टू अदर फिल्म फेस्टिवल्स एंड दैट इज़ ऑन अ डिफरेंट लेवल कम्प्लीटली। वो जनरल पब्लिक से हटके है। तो ये अगर आपको अच्छी लगी है तो आई होप कि वो बहुत अच्छी लगे, क्योंकि वो एक ऐसा टॉपिक है कि कोई नहीं बात करता उस बारे में और उस बारे में बात होनी बहुत ज़रूरी है। एंड अगर बेसिकली मैं बता दूंगा किस टॉपिक पे है, आई डोंट फील, मुझे नहीं लगता कि मुझे छुपाना चाहिए। इट्स ऑन होमोसेक्सुअलिटी, बट हमारे स्पेशली लोगों में, स्पेशली छोटे शहर में, इट्स अ स्टोरी ऑफ अ स्मॉल सिटी। तो छोटे शहरों में होमोसेक्सुअलिटी को लेके बहुत बातें हैं, कुछ बीमारी मानते हैं, कुछ बोलते हैं हम सुधार देंगे एंड एवरीथिंग। एंड आई डोंट नो इसका रीज़न क्या है, बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम अ स्मॉल सिटी। मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसा है तो फिर वो गलत। तो इसीलिए वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि उस चीज़ को थोड़ा और आगे लेके जाके वी कुड इम्प्रूव थिंग्स, कि हमारे थोड़े से एफर्ट्स है हमारी फिल्म से, बाय नॉट मेकिंग completely commercial films but थोड़े social issues पे films बना के if we can give messages to society for one। एक मैंने इसी बात पे एक और चीज़ कही थी कि अगर मेरी फिल्म से एक पर्सन सुधर जाता है तो मुझे अपनी लाइफ में और कुछ अचीव करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दैट इज़ एवरीथिंग फॉर मी, बिकॉज आई हैव इम्प्रूव्ड वन पर्सन इन माई लाइफ, दैट इज़ व्हाट आई से व्हेन आई डाई, कि यार ये चीज़ तो मैंने किया, दैट इज़ माई अचीवमेंट। एंड उसके अलावा मुझे और कोई अचीवमेंट नहीं लगती मुझे चाहिए। फिल्म बहुत ब्यूटीफुल लगी, बहुत प्यारी लव स्टोरी है, और जो इसमें एक जो एंड में जो ट्विस्ट है वो बहुत प्यारा है, अनएक्सपेक्टेड है एंड बहुत ही इंटेंस पैशनेट लव स्टोरी है। और इसके सबसे अच्छा मुझे लगा इसमें एक तो विजुअल्स और परफॉर्मेंसेस बहुत प्यारे हैं, बहुत नेचुरल और बहुत रियल लगते हैं। आपको देखा गया कि आप अंदर सबकी तारीफें कर रहे थे जो फिल्म देखने के बाद, यू लव द सब्जेक्ट दैट मच, व्हाट इज द सब्जेक्ट दैट कनेक्टेड यू, लाइक क्या ऐसा लगा कि बहुत कनेक्ट हो गया आप इस फिल्म से? द इमोशन ऑफ लव विच इज़ लाइक यूनिवर्सल एंड जो सबसे ज़्यादा आपको कनेक्ट करता है दिस थिंग, एंड इतना रियल पैशनेट लव आजकल ज़्यादा फिल्मों में नहीं दिखाया जाता है, तो वो जो रेयरली दिखता है इसलिए मुझे बहुत कनेक्ट किया। ओके सर, आपसे ये सवाल है कि फिल्म में ऐसी क्या खास बात थी जिससे आप कनेक्ट हुए, और ये मैसेज जिस तरह का दे रही है फिल्म वो कितना बढ़िया मैसेज है? देखिए, बेसिकली लव ऐसी चीज़ है, सबको ही अच्छा लगता है, और इसके अंदर क्या है कि लाइक जो एक फील जो दिया एक सेक्रीफाइस का, मतलब एक प्योर लव है कि ठीक है मेरी वजह से जो है एक कैरेक्टर है जो कि इतना प्यार करता है कि वो नफ़रत जगाने की कोशिश करता है उसके लिए, लड़की के लिए, कि वो था कि वो एक दिखाता है कि ठीक है वो
कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है, सबको टॉर्चर कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन बट अंदर अंदर वो बहुत उसको प्यार करता है और वो चाहता है कि वो उससे सेपरेट हो जाए। तो ये एक अच्छा एक ट्रीटमेंट है और शाहजहां ने बहुत अच्छा काम किया है इसमें। एक डुअल पर्सनैलिटी है उसमें, एक ऐसा लवर बॉय है और एक जो है लाइक किस तरह से उसका एक नेगेटिव अपना उसने एक जो दिया है उसमें लाइक एटीट्यूड है, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। डायरेक्टर का भी अच्छा काम है, राइटर, एडिटर सब मिला के इट्स अ नाइस जॉब।